Okay, guys, I hope you have completed yesterday's program. So today I'm giving you one question right now, and next 5 minutes just try to write down the logic in your notebook. Okay, let's see how many of you are able to complete this. Okay, it's just very simple, just 5 minutes, and then I'll take this program. Okay, so the code is accept any 10 numbers in array and find out smallest number greater number from the given array. Means suppose if you enter number 5, 7, 11, 21, 43, 99, 3, 7, 15, 33. So answer is small number is 5 and greater number is 99. Understood the question? Please reply. Question कळला सगळ्यांना? Please reply. Hello, question is clear? Okay, so please try this code for the next 5 minutes. Let's see how many of you are able to solve this, and share that photo on a group. Just please take the photo of the logic and share on the group. Let me check how many of you are able to complete this. Start. Hello. So, किती लोकांना आलं बघू द्या प्रोग्राम. Okay. Minimum is equal to this. Suprata has to write the code here. Chinmayi, okay. Niranjan. ठीक है Niranjan. Okay, then we have Mrunalini. Okay, fine. Sai, Suryanshi. Okay. Yash. ठीक है. Then who's this? Sai Kulkarni. Okay. ठीक है. Samiksha. ठीक है. Then next is Sakshi. Okay. Who's this? Sakshi Cummins. Second Sakshi. थोडंसं चुकलंय Sakshi. Okay, I'll tell you what is wrong. Okay, fine. Gaurav. Bhagyashree. Okay. Jnanada. ठीक है. Almost correct. Yeah, not an issue. Okay, almost the code is correct. Okay, very good. Okay, so you guys are doing well now. Fine. So I'll explain the code. Listen carefully. As I told you, take the any 10 numbers in the array. So suppose this is your array here. Last index is 9 now. ठीक है, तो ये है तुम्हारा लास्ट इंडेक्स यहाँ पे. तो elements are 6, 9, 3, 2, 8, 21, 5, 1, 7, 77, 21, or suppose 22, and next is 4. So these are your elements here. ठीक है, 9 elements correct है. So यहाँ पे तुम्हारे elements चाहिए, याद रखो. ठीक है. So अभी क्या करना है? हाँ. So this is the index and these are the values. Index and values. तो as I told you कि तुम लोगों को फाइंड आउट करना है सबसे छोटा नंबर कौन है और सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे. So you have to find out the smallest and greatest number in the given array. तो सबसे पहले declare the array here. So array, I guess maybe 6 number program here. Okay. So यहाँ पे save this program. Array min max dot c. तो अभी तुम लोग IPL का मैच देख रहे थे. देखो, तो IPL के मैच के अंदर होता है कि वो पर्पल कैप ऑरेंज कैप होता है ना. तो कैप कैसे शिफ्ट होता रहता है एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास, वैसे ही यहाँ पे है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू कैन टेक द एरे ऑफ साइज 10, देन यू कैन टेक द आई हियर. आफ्टर दिस हियर यू नीड अ 2 वेरिएबल. ये होगा तुम्हारा पर्पल कैप
और ये हो गया तुम्हारा ऑरेंज कैप, ठीक है। वन इज द पर्पल कैप, वन इज द ऑरेंज कैप। पर्पल कैप रहेगा जिसके पास छोटा नंबर है, और ऑरेंज कैप रहेगा जिसके पास बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। तो कभी भी कोई भी प्रोग्राम अगर करना है तो सबसे पहले यू नीड टू राइट द डिक्लेरेशन। तो वी हैव अ array, in the array I have two variable mean and max. So let's enter here printf, enter any 10 numbers in array, scanf percent d comma ampersand arr of I, enter any 10 numbers in the array। तो पहले नंबर एक्सेप्ट कर लो। अभी क्या करना है, once you got the number here, then what is the next step? देखो तो क्या करेंगे, yes we can use for loop, no problem, except sorry, yeah, for loop is required here, that's right Sonakshi। I0 I less than है 10 से और I प्लस प्लस करेंगे, and here is the element। अभी क्या करना है, take one more for loop, I equal 0 I less than 10 I प्लस प्लस। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले एलिमेंट तो एक्सेप्ट कर लो, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अज्यूम दैट कि मिनिमम नंबर इज इक्वल टू ARR का 0 है, जो 0 पे है ना वो मिनिमम नंबर है, और अज्यूम दैट द मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू ARR ऑफ 0। तो सबसे छोटा नंबर भी 0 पे ही है, बड़ा नंबर भी 0 पे ही है। दिस इज क्लियर। अज्यूम दैट कि सबसे छोटा नंबर और बड़ा नंबर ये 0th पोजीशन पे है, मतलब क्या, चेक दिस डायग्राम। इन द डायग्राम एज आई टोल्ड यू कि सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पे है, ये I है, हाँ याद रखो दिस इज I। इमेजिन करो ये मीन है और यही मैक्स है। एक और लगा सगळ्यांना, प्लीज रिप्लाई एवरीबडी। राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यही मीन नंबर है, यही मैक्सिमम नंबर है, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, I को स्टार्ट करो 1 लोकेशन से, I स्टार्ट फ्रॉम 1। इफ ARR ऑफ I अगर बड़ा है मैक्स से, तो यहाँ पे लिखो मैक्स इज इक्वल टू ARR ऑफ I। इसका मतलब अगर 1 लोकेशन का एलिमेंट, मतलब कौन, ये एलिमेंट, ये I इधर आ गया मेरा, I here, ये एलिमेंट अगर बड़ा है इससे, तो अगर ये 9, सुनो 9 अगर ग्रेटर देन है 6 से, तो 9 को कॉपी करो मैक्स के अंदर, तो मैक्स हो जाएगा यहाँ पे, यू कैन से दैट मैक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। नहीं तो इफ ARR ऑफ I अगर छोटा है मीन से, तो मीन इज इक्वल टू ARR ऑफ I। बट अभी क्या हुआ, मीन इज इक्वल टू नो चेंज, बिकॉज यहाँ पे अगर देखोगे ARR ऑफ I मतलब कौन, ARR ऑफ I मतलब कौन, 1 सेकेंड, ARR ऑफ I मतलब 9 ये छोटा है क्या 6 से, नो, सो नो नीड टू चेंज दिस, ओके। 9 इज लेस देन 6, नो, हियर 9 इज ग्रेटर देन 6, यस, ओके। अभी क्या करना है देखो, ARR ऑफ I मतलब 9 अगर छोटा है क्या 6 से, नहीं है, तो ये वाला मैक्स तो 9 हो गया, ये तो कंफर्म। I प्लस प्लस, I becomes 2, लेट्स मूव टू द I प्लस प्लस, I will shift to the 2, कौन आ गया यहाँ पे 3, तो 3 मतलब ARR ऑफ I, ये ग्रेटर देन है क्या 6 से, नो, अगेन गो टू दिस ब्लॉक, 3 इज लेस देन 6, यस, तो मीन हो गया 3। फिर करते हैं, प्लीज रिप्लाई, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, प्लीज रिप्लाई। becomes a 3, I becomes 3, तो I आ जाएगा नेक्स्ट पोजीशन पे, what is the value, 2, value is 2, so 2 is greater than 6, no,
2 is less than 6, yes, तो मीन चेंज हो गया 2, मीन चेंज हो गया 2, ओके। तो अभी मीन किधर है? 2 के पास, यहाँ पे है मीन, और मैक्स किसके पास है? यहाँ पे है मैक्स, याद रखो, दिस इज कॉल्ड एज द मैक्स, दिस इज कॉल्ड एज मीन। i प्लस प्लस i बिकम्स 4, 4 पे कौन है देखो? वैल्यू, फोर्थ लोकेशन पे वैल्यू इज 8, तो 8 is greater than 6, yes, तो मैक्स बिकम 8, तो ये मैक्स जो होगा ये कट होके आ जाएगा यहाँ पे, मैक्स आ जाएगा यहाँ पे, अंडरस्टूड। तो i प्लस प्लस i विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन, once again i becomes a 5, तो ये कौन है? नेक्स्ट इज 21, 21 इज ग्रेटर देन 8, क्योंकि मैक्स अभी 8 है, यस, तो मैक्स बिकम 21 नाउ, मैक्स बिकम 21, मैक्स को आगे शिफ्ट कर दो, i प्लस प्लस i हियर, कौन आ गया? 5, तो नेक्स्ट इज i बिकम 6, नेक्स्ट इज 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 8, नो, नो चेंज, 5 इज लेस देन 6, यस, शिफ्ट, अच्छा मीन ऑलरेडी 2 है, नो, स्टॉप दिस, मतलब नो चेंज, तो यहाँ पे मैक्स रहेगा यहीं पे और मीन रहेगा यहीं पे, अभी तक ये सबसे बड़ा है और अभी तक ये सबसे छोटा है, क्लियर? यहां तक हम लोग आ गए, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, ये सबसे छोटा एलिमेंट है अभी तक, राइट? ठीक है, आफ्टर दिस i becomes a 7, 7 less than 10, I will move to the next position, I here 7, तो यहाँ पे क्या पूछा हमने? So guys please don't break the link, I am telling you, see जब भी सेशन चलता है ना, प्लीज बी इन द फ्लो, ओके, क्योंकि ये बहुत लाइक सिस्टमेटिक समझना पड़ता है चीजों को, क्लियर? ठीक है, इफ यू डिस्टर्ब योर सेल्फ बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो अननेसेसरी यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, so again I am telling you, whenever the array type of topics are there, please 100% present in the lecture itself, remember this, then only you will able to understand the concept। तो I आ गया 7 पे, I is a 7, 7 less than 10, तो 7 पे कौन सा एलिमेंट है देखो, 7 पे है 1, यहाँ पे 1 is greater than 8, no, 1 is less than 2, yes, मीन को चेंज करो 1 पे, यहाँ पे होगा दिस योर मीन विल गो टू दिस पोजीशन, i प्लस प्लस i here, 7 is greater than 21, no, 7 is less than this, no, i प्लस प्लस 77 is less than this, no, 77 is greater than this, yes, मैक्स हो गया इधर, फाइनली लूप इज कंप्लीटेड, फाइनली योर लूप इज कंप्लीटेड, i हो गया 10, stop the loop, and at last you got this is the minimum element, at last this is the smallest element, and this one is the largest element in the given array, बरोबर है कि नहीं? Please reply everyone, at the end of this loop this is the smallest element and this is the largest element in given array, ठीक है? At the end of the array this one is the smallest element and this one is the largest element, चलो इसको प्रिंट करते बाहर, प्रिंटर greater element is %b, x, printer smallest element is %b, यहाँ पे आएगा मीन, तो ये होगा ग्रेटर एलिमेंट, ये होगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट। चेक करो इसको कंपाइल करके एक बार, कंपाइलर कोड run this, enter any 10 numbers, 5, 8, 9, 11, 21, 30, 12, 4, 6, 5, so greater element is 30, smallest element is 4, that's it. So in this way you can find out the greatest element and smallest element in the given array. So I'll repeat in short कि क्या किया हम लोगों ने,
सबसे पहले हमने एरे में एलिमेंट एक्सेप्ट कर लिए, अभी वो कोड समझना है। आई होप दैट कोड नाउ एवरीबॉडी इज क्लियर कि हाउ टू एक्सेप्ट द एलिमेंट। तो एक बार एलिमेंट एक्सेप्ट हो गए तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मीन और मैक्स को 0 पे शिफ्ट कर दिया। ऐसे कंसीडर किया कि यही मिनिमम है और यही मैक्सिमम है। फिर बोला हमने कि आई को 1 से स्टार्ट करो, आई को यहाँ पे शुरू किया। फिर मैंने पूछा कि 9 ये छोटा है क्या 6 से? नो। 9 है बड़ा है क्या 6 से? यस। तो मैक्स चेंज होगा, मैक्स आएगा यहाँ पे, मैक्स विल गो टू दिस पोजीशन आई प्लस प्लस। तो इसके बाद आएगा 3 ये छोटा है क्या 6 से? यस। तो क्या करो, यहाँ पे आएगा मीन। ओके, तो ये है जो मीन, इसको कट करो, यहाँ पे लेके आओ। फिर हमने पूछा कि आई यहाँ पे आ गया, 2 ये छोटा है क्या 3 से? यस। तो मीन आ गया इधर। फिर पूछा 8 ये छोटा है क्या 2 से? नो। 8 ये बड़ा है क्या 9 से? यस। नो नो सॉरी, नो चेंज, आई विल मूव टू दिस पोजीशन। तो 21 ये छोटा है क्या 2 से? नो। 21 इज ग्रेटर देन मैक्स? यस। ये आ गया इधर। फिर से आई चला गया आगे। फिर 5 is smaller than 2? No. 5 is greater than 21? No. I is here. 1 is smaller than 2? Yes. So mean change to this place. Then I plus plus. 7 is a greater than sorry smaller than 1? No. 7 is greater than 21? No. तो ये आएगा आगे I plus plus. Okay, I is here right now. तो यहाँ पे आएगा 77 इज लेस देन 1, सॉरी ये यहीं पे रहेगा, सॉरी ये यहाँ पे है, लेस देन 1? नो। इज ग्रेटर देन मैक्स? यस। तो ये होगा इधर। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे you will get the smallest and greatest element in given array. Using this loop you will get the smallest and greatest element in the given array. ठीक है, that's it. ठीक है, तो ये था प्रोग्राम तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर का और ग्रेटर नंबर का। क्लियर? लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रोग्राम नाउ। Let's go to next program now. Okay, here is the save as array. कल शुभम ने क्वेश्चन किया था कि इवन नंबर और ऑड नंबर को अलग करना है, डॉट सी। इवन ऑड को अलग अलग करना, याद रखो मैंने क्या कर रहा हूँ। आई हैव अ array of size 10, then I am taking one more array, integer, even array। अभी हमें मालूम नहीं कितने इवन नंबर है, तो मैं 10 साइज का इवन array ले रहा हूँ और ऑड array का भी 10 ले लिया मैंने। Take the even array and odd array, take two more variables j and k। ठीक है, इनका सम भी करना है मुझे, तो इसको बोलूंगा मैं इवन का सम और ये होगा ऑड का सम। ठीक है, एक्सेप्ट एनी 10 नंबर। यहां तक तो क्लियर है? दिस इज क्लियर, एम आई राइट एवरीबडी? सबसे पहले एक एरे लेंगे, उसमें इवन नंबर कौन से वो इधर आएंगे, ऑड नंबर कौन है वो यहाँ पे आएंगे, इवन ऑड जो भी होंगे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे इवन रखो, यहाँ पे ऑड रखो। So after this, enter any 10 numbers in the array, accept that numbers, and यहाँ पे आने के बाद use for loop। Okay, चलो यहाँ तक तो क्लियर है ना? Please reply. Can we do this using array of max? Yes, you can do that, right? Yeah, no problem, Dhanashri. But I am taking the right now hard coded value. Okay. नाही that's right की मे बी जर एखाद्याने सगळेच इव्हन टाकले तर मग ते इथे स्टोर होणार, जर कोणी सगळेच ऑड टाकले तर इकडे स्टोर होणार, कळलं का? म्हणून मॅक्स 10 घेतलंय, बिकॉज मॅक्झिमम टाकून किती इलेमेंट इव्हन टाकणार आहे? जास्तीत जास्त 10. किती ऑड टाकणार आहे? जास्तीत जास्त 10. क्लिअर? So max to max you can enter 10 even number, or max to max you can 10 odd number. Therefore I am taking 10 and 10 here. Understood? Because we don't know na ki user is going to enter how which number, how many even and how many odd, that you don't know right now. Clear? How many even and how many odd, that you don't know right now. Clear?
ठीक है, तो देखो अभी क्या करेंगे। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस। तो यहाँ पे इफ, सबसे पहले एक काम करो, कॉमा करके देखो। उस दिन somebody was facing the error कि यहाँ पे 3 सेमीकोलन लिखे थे। तो फॉर का सिंटैक्स क्या बोलता है कि you cannot take the 3 semicolon, max to max only 2 semicolon, that's it. Okay, only 2 semicolons are allowed in a for ka syntax. Okay, so remember this. So here I equal to 0, then j is equal to 0, k is equal to 0. तो ये सारे 0 है, ये valid है। No, use comma here. Only 2 semicolons are allowed. Clear? Now if ARR of I को अगर हमने mod किया 2 से, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवन के एरे के अंदर i पोजीशन पे, इवन एरे के 0th पोजीशन के ऊपर हम लोग एरे का i एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। ठीक है, इवन के एरे का 0 पोजीशन पे अगर नंबर को मॉड किया 2 ने, 0 वाले को मॉड किया 2 से, इवन आएगा, तो एरे का जो 0 वाला रहेगा उसको इवन के, सॉरी इसको j रखना है, इसको भी j लेंगे हम लोग, j। आई विल एक्सप्लेन, जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड। बाद में j प्लस प्लस, थोड़ा सा रुको, मैं इसको टाइप करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ARR ऑफ i को अगर मॉड किया 2 ने एंड नॉट इक्वल टू अगर 0 आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑड एरे के लोकेशन के ऊपर हम लोग एरे का i स्टोर करेंगे और ये आएगा k प्लस प्लस। देखो अभी ये कैसे काम कर रहा है, लिसन। तो यहाँ पे मेरे पास ये नंबर है, इमेजिन करो ये हमारे पास नंबर है। तो i तुम्हारा 0 से स्टार्ट होगा, क्या आएगा, इवन वाला एरे, और ये आएगा ऑड वाला एरे। दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल एरे, दिस इज कॉल्ड एज इवन का एरे, दिस इज कॉल्ड एज ऑड का एरे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे भी है। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको, ये आएगा j यहाँ पे, ये आएगा k यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा i 0 पे है, तो उसने बोला कि ये वाला एलिमेंट को मॉड किया 2 से। देखो हाँ ठीक से, क्या था, 0 लेस देन 10 से नंबर इज 6, इसको मॉड किया अगर 2 ने, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, यस 0 है, तो i को कॉपी करो इवन एरे के j पे, मतलब इसको कॉपी करके यहाँ पे रखना है और उसके बाद j को प्लस प्लस करना है, j आएगा इधर। ही स्टेप कर लिखा, प्लीज रिप्लाई, ही स्टेप महत्वाची है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये अगर इवन है तो इसको कॉपी यहाँ पे करो और j को प्लस प्लस करो, प्लीज रिप्लाई। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसको मॉड किया 2 ने, तो कॉपी करके j को प्लस प्लस करो। ठीक है, आफ्टर दिस i becomes 1, 1 लेस देन 10 से 1 लोकेशन पे कौन सा नंबर है चेक करो, 1 लोकेशन पे कौन है, ये इधर आएगा, 9 इज देयर। 9 को मॉड किया 2 ने, रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं, तो क्या करेंगे, गो टू दिस ब्लॉक, तो i को कॉपी करो k के ऊपर, ऑड नंबर के एरे में i को कॉपी करना है यहां से इधर, और ये आएगा k प्लस प्लस, k विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम i becomes 2, 2 पे कौन है देखो, अभी इधर 2 लोकेशन पे हमारे पास यहाँ पे है 3, ये कौन है, ऑड नंबर है, तो इसको मॉड किया 2 ने, रिमाइंडर आ रहा है 1, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे रख दो और ये j प्लस प्लस करो, ये आ गया आगे, i प्लस प्लस, i विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन।
2 को फिर से सॉरी 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 ये गलत हो गया, सॉरी दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, सॉरी। तो ये यहीं पे रहेगा और k प्लस प्लस होगा। ठीक है, फिर आ गया 3, 3 2 है तो ये कॉपी होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा और j प्लस प्लस होगा। आई होप यू गॉट द लॉजिक, एम आई राइट? k प्लस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट i कहाँ पे आ गया, शायद से 4 पे आ गया, चेक करो एक बार। i इज एट 4, इधर आ गए हम लोग, 8 है वहां पे, 8 तो इवन नंबर है तो यहाँ पे आएगा और j को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ये देखो 8 को मॉड किया 2 से, रिमाइंडर 0 है, कॉपी करो j के अंदर और j प्लस प्लस जाएगा। ओके, फिर से एक बार, i इज हियर, जैसे 21, 21 को मॉड किया ये इधर आएगा 21 और यहाँ पे आएगा k प्लस प्लस, k विल मूव टू द नेक्स्ट पोजीशन। सेम थिंग यू कैन गो टू i इज हियर, 5 पे आ गया, ऑड नंबर है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएगा, ये जाएगा आगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये मिल गया 1 जो है वो होगा यहाँ पे। ठीक है, के प्लस प्लस, ओके के प्लस प्लस। इसके बाद कौन है 7, 7 के लिए फिर से एक बार हम लोग यहाँ पे आएंगे, के प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद कौन है आगे 77, वो भी इधर ही आएगा, के प्लस प्लस, के प्लस प्लस, दैट्स इट। सो दीज आर योर एलिमेंट, ये आएगा तुम्हारा i और ये j और ये आएगा तुम्हारा k। इन शॉर्ट यू हैव 3 even number, you have 7 odd number, understood? Please reply. You have 3 even number and you have 7 odd numbers, everybody understood? Please reply. ठीक है, तो अभी इसको प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, लेट्स प्रिंट दिस सेपरेटली। printf slash n total even numbers are %d comma j and your numbers are for loop I starts from 0, I starts from 0, I less than equal to j and I plus plus, क्योंकि j तक ही प्रिंट करो, printf ओके स्लैश एन मत लिखो, %5d करो, कॉमा इवन एरे का i को प्रिंट करो। सेम थिंग ये होगा printf टोटल ऑड नंबर्स आर %d कॉमा k। देखो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टाइम लगेगा तो भी चलेगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, नॉट ओनली सी प्रोग्रामिंग, for all the programming this is one of the very important topic। ठीक है, so please अगर कोई डाउट है तो you can ask me, 0 I less than, और most important practice regularly, क्योंकि यहाँ तक तुम्हारा प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो जाता है, इसके आगे तुम्हें कंसेप्ट सीखने होते हैं। लॉजिकल पार्ट इज ऑलमोस्ट लाइक यू कैन स्ट्रांग इन दिस एरिया, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट्स। प्रोग्राम तो यही रहेंगे, सिर्फ कंसेप्ट चेंज होते रहेंगे, अंडरस्टूड? प्रोग्राम यही रहेंगे, कंसेप्ट चेंज होंगे यहां से आगे। %d कॉमा ऑड का एरे का i, इसको चेक करो एक बार, कंपाइलर कोड, enter 10 numbers 8 2 4 11 21 31 99 23 55 31। क्या हुआ, एक सेकेंड ना, इसको फिर से रन करता हूँ ठीक से, एक मिनट। अच्छा ये enter 10 number
5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 6, 55, 7, 10 हो गए. देखो, even numbers are 3, 8, 12, 6. Odd numbers are 7, 5, 9, 11, 13, 15, 55 and 7. That's it. This is what your example for the sort out the even number and odd numbers. 3 is the size of the even number. How many even numbers are there? Array, that is the total even number, guys. Please understand. How many even, ही लाइन बघा ना इथे, ही लाइन चेक करा. How many even numbers are there? 3. ठीक आहे, जाऊ द्या. आता लक्ष द्या इथे. Okay. Okay. 5, 6, 8, 11, 12, 14, 55. किती झाले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. आता कळलं? 5 प्लस काय आलं? त्याच्या आधीची लाईन वाचा. काय लाईन आहे ती? टोटल इवन नंबर किती येते? अंडरस्टूड एव्हरीवन? इवन नंबर इज 5, ऑड नंबर्स आर 5. So याच्यातनं इवन नंबर आणि ऑड नंबरची सम पण करायची. ओके, यू हैव टू कैलकुलेट सम आल्सो फॉर इवन नंबर एंड ऑड नंबर. तो उसके लिए क्या करोगे तुम लोग? सिर्फ एक काम करना था, इसको इनिशियली 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो. यहाँ पे तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, इवन का सम इज इक्वल टू इवन का सम प्लस ARR ऑफ का आई, क्योंकि इवन नंबर होगा यहाँ पे. सेम थिंग यहाँ पे आएगा, ऑड का सम इज इक्वल टू ऑड का सम प्लस ARR ऑफ आई. So that's it. So you will get sum of even number and odd number. So here you can see. तो यहाँ पे प्रिंट करो, टोटल इवन नंबर्स आर दिस, एंड यहाँ पे लिखो प्रिंटर सम ऑफ इवन नंबर्स इज परसेंट डी इवन सम, और यहाँ पे आएगा सम ऑफ ऑड नंबर इज परसेंट डी, एंड यहाँ पे आएगा ऑड सम. दैट्स इट. Compile and run this. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 12, 10, 8. तो even numbers are 6. ये आ गया इसका sum 56. odd numbers are 4. ये आ गया उसका sum 38. ठीक है? तो remember this. ठीक है, तो मैंने और एक क्वेश्चन दिया था तुम्हें कल कि एक्सेप्ट एनी 10 नंबर्स. ओके, कैन आई गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल? कैन आई गो टू नेक्स्ट एग्जांपल? प्लीज रिप्लाई. ओके, ये एग्जांपल क्लियर है ना सबको? प्लीज रिप्लाई. पण काय केलं इकडे सही, जो पहिला नंबर होता त्या नंबरला मॉड केलं 2 ने, जर रिमाइंडर 0 आला तर तो नंबर कॉपी केला याच्यामध्ये. जर रिमाइंडर नाही 0 आला तर तो कॉपी केला आपण या ऍरे मध्ये. ठीक आहे, आणि त्याची सम पण करत गेलो. क्लिअर? जर नंबरला डिवाइड केलं 2 ने तर त्याला कॉपी करायचं याच्यामध्ये J++, याला कॉपी करायचं K मध्ये आणि K++, असं कंटिन्यू होणार प्रत्येक लोकेशन साठी. ठीक आहे, असं कंटिन्यू होणार प्रत्येक एलिमेंट साठी. ओके, रिमेंबर दिस. आणि ऍट द एंड ऑफ द लूप यू कॅन प्रिंट हियर total even number and total odd number with their sum. Okay, so I'll take one more program where you have to print all the number which is greater than the average number. Array average dot c. तो मैंने क्या बोला तुम्हें कल, एक एग्जांपल दिया था करने के लिए. Accept any 10 numbers
and print all the number which is greater than the average number. तो यहाँ पे एक array ले लिया, I is there, so we need a sum, we need a average. That's right, salary, correct. Okay, average, we need I. So printf enter any 10 numbers, for loop I equal to 0, I less than 10, I plus plus %b ampersand error of I. ठीक है, तो एक्सेप्ट करो 10 नंबर्स को. आफ्टर दिस अभी क्या करना है, सम करना है हमें. सम इज इक्वल टू सम प्लस एरर ऑफ आई. तो पहला नंबर कौन था हमारा, एग्जांपल 5. उसके बाद सपोज टी सैलरी थी ना, सॉरी सैलरी. ठीक है, एग्जांपल 2000, 1000, 1200, 1500, ओके, 3000, 2200, ऐसे कुछ सैलरी एंटर की है. सपोज इसका जो भी सम आएगा, एग्जांपल लो, सम टोटल एवरेज सम हो गया एंड सम से हमने एवरेज निकाल लिया. सो वी गॉट द एवरेज हियर, एग्जांपल 2000. याद रखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं सम करूंगा एक्सेप्ट 10 नंबर्स, उस 10 नंबर का सम करूंगा. हे कळतंय का सगळ्यांना, प्लीज रिप्लाय. आता हे ऑलरेडी घेतलंय ना, म्हणून मी एक्सप्लेन नाही करते जास्त. हे कळतंय ना, I already told you this type of logic, therefore I am going to the next part. Okay, so accept 10 number and add the into a sum. अभी क्या करना है हमें, once you got the sum, तो अभी क्या करोगे यहाँ पे, कैलकुलेट एवरेज. तो एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 10, बराबर है ना. n से डिवाइड कर दिया जितने सैलरी उसमें से, है ना. ओके, दैट्स राइट. सम को 0 करो नहीं तो गार्बेज आएगा. वेरी गुड निरंजन. ओके, फॉर लूप I equal to 0, I less than 10 again, I plus plus, and here if error of I अगर ग्रेटर देन है एवरेज से, तो error of I अगर ग्रेटर देन है एवरेज से, तो printf %5d कॉमा error of I. तो 0 लेस देन 10 से, तो 0 वाला नंबर ग्रेटर देन होगा एरे से. सपोज एवरेज कितना, आई डोंट नो राइट नाउ. सपोज ये 2100 है, तो 2100 इज ग्रेटर देन 2000. यस, तो उसको प्रिंट करो. उसके बाद नेक्स्ट नंबर 1000 है, 1000 ग्रेटर देन एक एवरेज से नहीं है तो मत प्रिंट करो. 1200 भी नहीं, 15 भी नहीं, 3000 ग्रेटर है. यस, उसको प्रिंट करो. उसके बाद ये 22 ग्रेटर है. यस, इसको प्रिंट करो. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. तो जो नंबर एवरेज के ऊपर होगा उसी को प्रिंट करो. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस. हाँ, दैट्स राइट. सोनाक्षी, हो सकता है एवरेज हो सकता है फ्लोट में. दैट्स राइट. तो एक चेक करके देखते हैं एक बार, रुको. यस, बट प्रॉब्लम क्या है सोनाक्षी, प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो वेरिएबल है ना एवरेज, जो मैंने इंटीजर में लिया है, तो डेसिमल के आगे का वैल्यू को इग्नोर करेगा. डेसिमल के आगे के वैल्यू को इग्नोर करेगा वो. कंपाइल एंड रन दिस. enter 10 numbers. Suppose 1000 salary, 1200, 4000, 2100, 500, 3000, 1500, 1300, okay, 3200, 800. तो ये चार आ गए. एवरेज क्या निकला देखना पड़ेगा. उसके ऊपर ये चारों आ गए. लुक एट दिस. जो एवरेज निकला इसका, उसके ऊपर सिर्फ ये चार है. अंडरस्टूड. 4000, 2100, 300 एंड 3200. दैट्स इट. अंडरस्टूड सुब्रता. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 वाला सैलरी एवरेज के ऊपर होगा तो उसको प्रिंट करो, फिर 1 वाला सैलरी चेक करो, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला. क्लियर. ऐसे करते करते जो सैलरी एवरेज सैलरी के ऊपर है उसको प्रिंट करो.
ठीक है. सो गाइस प्लीज कंप्लीट ऑल द प्रोग्राम विच आई टोल्ड यू. एडेड मैं लिस्ट थोड़ी देर में शेयर करता हूँ कितने प्रोग्राम हो गए उसका. प्लीज कंप्लीट दैट प्रोग्राम. ओके. Every program you have to write down in your notebook 2 times. Every program you have to write down in your notebook 2 times. Okay. So remember this. And उसका फोटो एक बार शेयर करो. किसने जिन जिन लोगों का हो गया उन्होंने रिप्लाई एटलीस्ट कर देना कि सर डन ऐसे. हाँ, जिनका हो गया उन्होंने मैसेज करो कि कंप्लीटेड द प्रोग्राम इन नोटबुक. ओके. एटलीस्ट मैसेज मी. ओके. ऑन अ ग्रुप. चलो देन बाय. गुड नाइट. ओके. अभी गुड नाइट. चलो. We'll continue tomorrow.